In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Khatri. I hope you all are doing well. As you all know that in last video we discussed translation of chapter number 9. We actually completed that translation, right? So this video is all about objective part of chapter number 9, All is Not Lost. In this video we will discuss all the questions of exercise one by one. We will find out correct answer of each question in this video. But we might not be able to elaborate each and every grammatical term that actually has been used in this chapter, because it will take definitely a lot of time and I don't want to prolong this video. So let's start with the very first question. Here you can see the very first word on the top of your screen is glossary, right? Some words with their synonyms are given here. You can see here some words having same meanings, right? Words with same meanings. In your final term, one word with 4 options will be given and you will choose the right answer to secure 1 mark. So let's start. Here you can see the first word, neurology. Neurology is actually it's a knowledge of nerve, right? We can say it's a knowledge of nerve cells, right? तो आप मीनिंग कैसे लिखेंगे? न्यूरोलॉजी मीन्स असाबी, और यू कैन से असाबी खुलियों का इल्म. न्यूरोलॉजी मीन्स असाबी खुलियों का इल्म. एंड द सिनोनिम ऑफ न्यूरोलॉजी इज स्टडी ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल्स. स्टडी ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल्स. सेकेंड वर्ड इज डिवास्टेटिंग. डिवास्टेटिंग का मतलब होता है तबाहकुन, तबाहाल, सख्त बुरा. Synonym of devastating is shocking. Synonym of devastating is shocking. Third word is neurons. Neurons, asabi khuliye. Neurons means asabi khuliye. Synonym of neurons is nerve cells. Right, ऊपर देखिए आपने पढ़ा वर्ड न्यूरोलॉजी, दैट इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स, स्टडी ऑफ नर्व सेल्स, राइट. बट नीचे वर्ड है न्यूरॉन्स. सिनोनिम ऑफ न्यूरॉन्स इज नर्व सेल्स. नेक्स्ट वर्ड इज रिक्रूट, भर्ती करना, मुलाजमत पर रखना. एम्प्लॉय. Synonym of recruit is employ. With a slash you can write here hire, H-I-R-E, hire. Next word is popping in. Okay, popping in का मतलब होता है तेजी से आना, नमूदार होना. We can say appearing, right? Popping in, appearing. The next word is crutches. Crutches, besakhiyan, like we can say supporting sticks. But here you can see the word support is written, right? Synonym of crutches is support, or with a slash you can definitely write supporting sticks. Both will be considered correct. Second last word is gradually. Ahista, ahista. Synonym of gradually is slowly. Synonym of gradually is slowly. And the last word is miserable. Miserable, काबिल रहम. Miserable, काबिल रहम, बहुत खराब. We can say तशवीशनाक, right? Very unhappy. Synonym of miserable is very unhappy. Alright, this is all about glossary, students. I hope it's clear. Coming to word exercise of chapter number 9. Okay students, here you can see exercise B. Rearrange these sentences in correct sequence. Okay,
One thing that I want to make clear that it is not going to be the part of your final term, okay? But आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो यू शुड नो कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है. आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 सेंटेंसेस हैं, राइट, 8 स्टेटमेंट्स हैं. आपसे ये पूछा गया है यहाँ पे कि आप इनको अरेंज करें, मतलब चैप्टर में नंबर 1 पे क्या बात है, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 3 पे क्या है, अकॉर्डिंगली. ओके, नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है. वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर. ओके, ये सेंटेंस ज़रूर गिवन है चैप्टर में, बट इस तरह से नहीं था कि आपको चैप्टर स्टार्ट होते ही ये बता दिया कि वी डू नॉट हैव मच होप फॉर दैट. इससे पहले क्या हुआ, किस बात पे ये जुमला कहा गया, आप देखिए. नंबर 1 एज अ यंग प्रोफेशनल, मतलब आपके सामने लिखा हुआ है नंबर 2 पे. ओके, सबसे पहले आप कौन सा सेंटेंस लिखेंगे, नंबर 2. एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड. एक नौजवान पेशावर की हैसियत से मैं दुनिया को बचाना चाहती थी. आफ्टर दैट यू विल राइट नंबर 8. देखिए, अगर आप इसी तरह से हुआ था चैप्टर में, उसने पहले कहा कि एक नौजवान पेशावर की हैसियत से मैं दुनिया को बचाना चाहती थी, फिर उसने सेकंड पैराग्राफ में आपको एक स्टोरी सुनाना शुरू कर दी थी. उससे रिलेटेड यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है, नंबर 8. वन डे स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ अ यंग पेशेंट I wondered if she could make the same recovery like others. एक दिन नौजवान मरीज़ा के सरहाने खड़े मैं हैरत में पड़ गई, क्या ये दूसरों की तरह सेहतयाब हो पाएगी. ओके, उसके बाद अगर आप देखते हैं नंबर 1, वी डू नॉट हैव मच होप फॉर दैट. हमें इसके बचने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है. अच्छा, ऐसा मैं आपसे नहीं कह रही हूँ स्टूडेंट्स कि नंबर 1 के बाद नंबर 8 लिखा हुआ है चैप्टर में, या नंबर 8 के बाद नंबर 1 लिखा हुआ है. नो, एक्चुअली हमने इसका सीक्वेंस करेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू चैप्टर, राइट. वी डू नॉट हैव मच होप फॉर दैट और हर, हमें उसके बचने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है. आफ्टर दैट यू कैन सी हेयर द एडवाइस नंबर 6. The advice to leave the patient unattended did not seem right. मरीज़ा को देखभाल के बगैर छोड़ देने का मशवरा सही नहीं लगता था. The advice to leave the patient unattended did not seem right. Okay. Then coming toward the next one. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. Yes, number 3. Number 3 will be the next one. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. Right? After that, you can see here, one day I was thrilled to see her lift her little finger, all was not lost. Exactly यही सेंटेंस है. बिल्कुल चैप्टर के एंड पे अगर हम आ जाते हैं तो नंबर 5, right? One day I was thrilled to see she lifted her little finger, all was not lost. एक दिन उसे अपनी छोटी उंगली उठाते हुए देखकर मैं खुशी से झूम उठी. All was not lost, सब कुछ ज़ाया नहीं हुआ था. And the last sentence will be, of course, fourth one. I was proud to be a nurse. मुझे एक नर्स होने पर फ़ख्र था. ये लास्ट सेंटेंस था आपके चैप्टर 9 का. I was proud to be a nurse. मुझे एक नर्स होने पर फ़ख्र था. Right? अगर मैं आपको नंबरिंग के अकॉर्डिंगली बताती हूँ तो नंबर 2 will be the first one. Number 7 will be the second one. Number 1 will be the third one. Number 6 will be the fourth one. Number 3 will be the fifth one. Just 1 minute. Number 5 will be the sixth one. And number 4 will be the last one. Okay? I hope it's clear.
I have already told you guys that it's not going to be the part of your final term, but you need to make a practice. You actually must know what is inside the chapter. Okay? इतना ग्रिप आपका होना चाहिए कि आप उसका सीक्वेंस भी करेक्ट कर पाएँ. आपको पता होना चाहिए पहले क्या बात है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्या है, एंड सो ऑन. Okay students, here you can see next exercise. Match column A with column B. Of course ये synonyms हैं, सेम मीनिंग्स है. एक साइड पे कॉलम ए है, आपने इसको सिनोनिम के साथ मैच करना है इन कॉलम बी. बट अगेन ये पेपर में आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. वन वर्ड विल बी गिवन विथ 4 ऑप्शंस, राइट, एंड यू विल बी आस्क्ड टू चूज द राइट वन. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड इज बिसाइड. बिसाइड का मतलब होता है एक तरफ. करेक्ट आंसर इज एट द साइड ऑफ. You will match beside with at the side of. Third one. In column A, you can see second word is ironic. Ironic. हमने word पढ़ा था chapter में. He gave me an ironic smile. तंजन मुस्कुराना, तंज करना. Conveying opposite sense. Ironic means conveying opposite sense. The last option. थर्ड वर्ड इज मेड अप. मेड अप, मेड अप का मतलब होता है रेडी करना खुद को, राइट, किसी चीज़ का फैसला कर लेना. डिसाइडेड वी कैन से, राइट. यू विल मैच मेड अप विद डिसाइडेड. synonym of made up is decided. And the last word in column A is justify my stance. Okay, justify my stance का मतलब होता है साबित करना खुद को, अपने मौक़िफ़ का जवाब पेश करना, राइट. हमने चैप्टर में ये सेंटेंस पढ़ा था, कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टांस, क्या मैं अपने मौक़िफ़ का जवाब पेश कर सकूँगी. सो यू विल मैच जस्टिफाई माई स्टांस विद प्रूव माई सेल्फ राइट. प्रूव माई सेल्फ राइट. Okay students, this is all about exercise A. Coming toward the next one. Coming toward exercise D. Change the narration of following sentences. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सीक्वेंस मेरे पास थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है वीडियो में, ठीक है. तो आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा अपनी टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस से. बट इसमें कंप्लीट एक्सरसाइज अवेलेबल है आपके पास, तो आप इसको मैच कर लीजिएगा. Change the narration of the following sentences. All right. This exercise is all about direct, indirect. I will soon upload a video in which a detailed lecture related to direct, indirect will be given, inshallah. But in this video, I will simply elaborate the right answer of each narration, right? Complete detail will not be given in this video because बहुत video लंबी हो जाएगी इस तरह से अगर हम direct, indirect को यहाँ पे discuss करेंगे तो. We will definitely discuss all the narration and all the pattern in a new video. Okay, direct narration is he said to him, what are you reading? अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चला कि ये डायरेक्ट है और या इनडायरेक्ट है. आप देखिए, अगर तो इन्वर्टेड कॉमास हैं, राइट, रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन क्लियरली एलैबोरेटेड, तो डेफिनेटली जो नरेशन है वो डायरेक्ट है. ओके. नंबर 1 इज ही सेड टू हिम व्हाट आर यू रीडिंग. आप देखें इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स भी आपको नजर आ रहे हैं, रिपोर्टिंग स्पीच भी है और रिपोर्टेड स्पीच भी है. इनडायरेक्ट नरेशन विल बी he asked him what he was reading. He asked him what he was reading. Number 2, he said you have made a mistake. Again you can see inverted commas are here, reporting speech is here and reported speech is here, तो आप इसको डायरेक्ट ही कंसीडर करते हैं. Indirect narration will be he told that I had made a mistake. One more time. He told that I had made a mistake. Number 3, she said do not waste your time. Okay. जहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क आपको नज़र नहीं आ रहा बट इन्वर्टेड कॉमास है और ऑर्डर किया जा रहा है, या आप इसको ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि फॉरबेट किया जा रहा है, किसी काम के करने से
मना किया जा रहा है, एडवाइस भी कंसीडर कर सकते हैं। सो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इतना अब तक आपको पता चल जाना चाहिए। He said, "Do not waste your time." Indirect narration will be, "She forbade to waste my time." She forbade to waste my time. Number 4, he said to me, "Will you watch our drama tonight?" Again, you can see question mark here. This is an interrogative sentence. Indirect narration will be, "He asked me if I would watch drama that night." He asked me if I would watch drama that night. Alright, coming toward the last one. She said to her sister, "Please listen to me." Again, you can see here the word please is there. So this is an imperative sentence because a request has been made. Okay. She said to her sister, "Please listen to me." Indirect narration will be, she requested her sister to listen to her. She requested her sister to listen to her. Okay. बट वन मोर टाइम मैं आपको ये बता रही हूँ स्टूडेंट्स कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कंप्लीट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे एक न्यू वीडियो में. सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो. दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. All right. Next question relates to preposition because we can see here a definition of compound preposition. Compound prepositions are two or more words working together as one word and functioning as a preposition. All right. देखिए स्टूडेंट्स, preposition एक्चुअली होता क्या है? अ वर्ड विच टेल्स यू अबाउट डायरेक्शन, राइट? वो चीज़ जो आपको डायरेक्शन बता रही होती है किसी ऑब्जेक्ट की. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से cat is under the table, under is preposition, right? Like if I say the ball is on the roof, right? Here the word on is preposition. ठीक हो गया? बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कंपाउंड प्रेपोजिशन से रिलेटेड है जिसकी डेफिनेशन अभी अभी हमने पढ़ी. कंपाउंड प्रेपोजिशंस आर टू और मोर वर्ड्स वर्किंग टुगेदर एज वन वर्ड. दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर जब काम कर रहे होते हैं जुमले में और वो प्रेपोजिशन का रोल प्ले कर रहे होते हैं. टू और मोर देन टू वर्ड्स वर्किंग एज अ वन वर्ड, राइट? एक वर्ड का वो काम कर रहे होते हैं और जुमले में वो प्रेपोजिशन का रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रेपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, ही कुड नॉट अटेंड द सेमिनार. वो सेमिनार अटेंड ना कर पाया बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर्स मैरिज, अपने भाई की शादी की वजह से. यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल्ड वर्ड्स हैं, बिकॉज ऑफ, राइट? तो हम इसको क्या कंसिडर करते हैं? दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, राइट, वर्किंग एज अ वन वर्ड and also playing the role of preposition. So this will be compound preposition. Coming toward exercise E, complete the sentences with the given compound prepositions. आपको options given हैं. But again I would like to tell you guys कि पेपर में आपको ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा. आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, हो सकता है उसमें ब्लैंक्स आ जाए और नीचे 4 ऑप्शंस विल बी गिवन, राइट? या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पहले से ही प्रेपोजिशन को फिलअप करके दें और आपसे ये पूछें कि आप बताएं हमें ये प्रेपोजिशन है या ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या व्हाट इट इज. ओके, हियर नंबर 1 इज डैश माय टीचर इट्स अ ग्रेट बुक. ओके, डैश माय टीचर इट्स अ ग्रेट बुक. अकॉर्डिंग टू माई टीचर इट्स अ ग्रेट बुक. मेरे टीचर के मुताबिक ये एक बहुत अच्छी किताब है. According to my teacher, it is a great book. Number 2, he had to retire dash ill health. He had to retire because of ill health. उसे रिटायर होना पड़ा अपनी बुरी सेहत की वजह से. Because of. He had to retire because of ill health. Number 3, I'm standing dash the school building. आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्कूल बिल्डिंग. मैं स्कूल की इमारत के सामने खड़ा हूँ. आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है. कौन सी प्रेपोजिशन है? कंपाउंड प्रेपोजिशन है. आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल बिल्डिंग. नंबर 4,
He is coming dash his friends. He is coming along with his friends. वो आ रहा है अपने दोस्तों के साथ. Along with. He is coming along with his friends. Number 5. I'm dash my home right now. I am away from my home right now. मैं अपने घर से दूर हूँ अभी. I am away from my house right now. Okay, coming toward the last one. He left for Sialkot dash Lahore. He left for Sialkot instead of Lahore. वो लाहौर की बजाय सियालकोट चला गया. He left for Sialkot instead of Lahore. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है. बट अगेन मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंपाउंड प्रेपोजिशन या ग्रामेटिकल कोई भी टर्म हम पढ़ते हैं अगर चैप्टर में, तो हम उसकी अलग से एक्सरसाइज भी करेंगे. और इसके अलावा जब हम अपना ग्रामेटिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम हर टर्म को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. हम हर टेंस को डिस्कस करेंगे, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, जिसमें पूरी वीडियो में एक ही टॉपिक डिस्कस किया जाएगा. लाइक अगर हम नाउन को डिस्कस करेंगे तो हम उसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे. अगर कंजंक्शन है या प्रेपोजिशन है, हम इन चीज़ों को भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक. हियर यू कैन सी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके स्टूडेंट, मैंने भी आपको पीछे बताया कि हमने अभी टेंसेस भी नहीं पढ़े हैं और ग्रामेटिकल पार्ट अभी हमने डिस्कस नहीं किया है. बट वन पॉइंट दैट यू कैन लर्न हियर इज past perfect continuous tense will include had been plus first form of verb plus ing. One more time. Had been plus first form of verb plus ing. Right? Here is an example. Rahim started waiting at 9 a.m. I arrived at 11 a.m. When I arrived, Rahim had been waiting for 2 hours. इस सेंटेंस में आप देखें हैड बीन वेटिंग जो है वो बोल्ड करके आपको बताया हुआ है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ कर दिया जाता है तो उस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कंसीडर करते हैं. राइट? इसके अलावा डेफिनेटली उसके सिंस और फॉर का भी केस होता है, बट ये तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में. ओके, कमिंग टू वर्ड एक्सरसाइज एफ. Write the past perfect continuous forms of verbs given in the brackets. Right? अच्छा, इसमें क्या है, एक स्टेटमेंट है और आप ब्रैकेट में देखें. लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट के एंड पे अगर आप देखते हैं तो आपको आर यू एन रन लिखा हुआ नज़र आ रहा है. राइट? हर स्टेटमेंट के एंड पे आपको हेल्पिंग वर्ब वर्ब दिया हुआ है, मेन वर्ब. राइट? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको कह रहे हैं कि आप उसके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंगली सेंटेंस को कंप्लीट करें. राइट? नंबर 1 देखिए. Salim was sitting on the chair, out of breath. He dash. All right. और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, रन. ठीक है, हमने इसको किसके अकॉर्डिंगली फिलअप करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के. तो हम क्या राइट करेंगे, सलीम वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, आउट ऑफ ब्रीथ, ही हैड बीन रनिंग. वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है तो हम उसमें आईएनजी प्लस करेंगे और हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का लगाएंगे, had been. He had been running. Okay. Second number देखिए. We dash along the road for 20 minutes when a car stopped and the driver offered us a lift. Alright. We had been walking. You can see here word walk has been underlined. So complete sentence will be according to past perfect continuous. Right? We had been walking along the road for 20 minutes when a car stopped and the driver offered us a lift. मतलब इसका ये है कि हम सड़क के साथ साथ 20 मिनट से चल रहे थे जब एक गाड़ी रुकी और एक ड्राइवर ने हमें लिफ्ट ऑफर की. राइट? We had been walking. We had been walking. Coming toward the third one. I dashed my homework for 2 hours when my friend came. Bracket में you can see here the word do is written. Right? So I had been doing my homework for 2 hours
when my friend came. जब मेरा दोस्त आया तो मैं 2 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा था या कर रही थी. One more time. I had been doing my homework for 2 hours when my friend came. The next one. They dash take exercise since morning. Word take has been given in bracket here. So, they had been taking exercise since morning. They had been taking exercise since morning. वो सुबह से वर्जिश कर रहे थे. They had been taking exercise since morning. Coming toward the last one, the patient, in bracket you can say word cry, with pain when the doctor arrived. Okay. Complete sentence according to past perfect continuous will be, the patient had been crying with pain when the doctor arrived. The patient had been crying with pain when the doctor arrived. Okay students, this is all about exercise F. आई होप आपको क्लियर हो गई है. ऑल्दो हमने टेंस नहीं पढ़ा, अभी हमने कोई भी टेंस डिस्कस नहीं किया है, बट आई होप कि मैंने जैसे आपको फॉर्मूला बताया है कि हम हैड बीन यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज़ करते हैं इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. आई होप आपको उससे इतनी बात तो एटलीस्ट समझ आ गई कि आप लोग इस एक्सरसाइज को अब कर पाएंगे. ओके, कमिंग टू वर्ड द नेक्स्ट वन. आई गेस नेक्स्ट जो है वो आपके सेंटेंसेस हैं. Let's see. Okay. Identify the phrases and idioms in the unit and use them in sentences. मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसकी जो अरेंजमेंट है वो आगे पीछे हो सकती है इन दिस वीडियो, तो आई थिंक ये पहले आना चाहिए था, बट इट्स ओके. अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आप चैप्टर से फ्रेजेस खुद फाइंड आउट करें, राइट, और यूनिट में से आप फ्रेजेस फाइंड आउट करें और उन फ्रेजेस को आप सेंटेंसेस में यूज़ करें. ठीक है, तो मैं ये आपको क्वेश्चन सनशाइन से करवा रही हूँ बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी फ्रेजेस जो हैं वो फाइंड आउट करके आपको गिवन हैं. नंबर 1 देखिए, आप इडियम भी बोल सकते हैं, फ्रेज भी बोल सकते हैं. टू सेव द वर्ल्ड, ये तमाम टर्म्स हमने चैप्टर में पढ़ी हैं. नंबर 1, टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचा लेना. द यंग नर्स वांटेड टू सेव द वर्ल्ड, नौजवान नर्स दुनिया को बचाना चाहती थी. सेकंड कॉलम में मीनिंग्स भी गिवन है, बट आप अपने लिए कर सकते हैं मीनिंग, बट नो नीड टू राइट देम इन योर पेपर. ओके, टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचा लेना. द यंग नर्स वांटेड टू सेव द वर्ल्ड, नौजवान नर्स पूरी दुनिया को बचाना चाहती थी. सेकंड वर्ड, इन वेन, बेकार. इन वेन का मतलब होता है बेकार, बेसूद. वी कैन से यूजलेस, राइट. I tried my best to leave smoking. मैंने सिगरेट नोशी छोड़ने की पूरी कोशिश की, but all in vain. लेकिन सब बेसूद, मतलब सब बेकार, कुछ फ़ायदा ना हुआ. I tried my best to leave smoking, but all in vain. Next word is read someone's mind. किसी का ज़हन पढ़ना. Read someone's mind, किसी का ज़हन पढ़ लेना. To understand someone's unexpressed feelings. Sentence of read someone's mind is, the nurse could read her patient's mind through her eyes. नर्स अपने मरीजों का ज़हन उनकी आंखों के ज़रिए पढ़ सकती थी. The nurse could read her patient's mind through her eyes. Okay, next word. To fight a lost battle. हारी हुई जंग लड़ना. टू फाइट अ लॉस्ट बैटल, हारी हुई जंग लड़ना. टू ट्राई टू गेट समथिंग नियरली लॉस्ट. ओके, सेंटेंस देखिए. द डॉक्टर्स आस्क्ड द नर्स नॉट टू फाइट अ लॉस्ट बैटल. डॉक्टर्स ने नर्स से कहा कि हारी हुई जंग मत लड़ो. The doctors asked the nurse not to fight a lost battle. ये तमाम हम लोगों ने स्टेटमेंट्स आप देखें जो जुमले यूज़ किए गए यहाँ पे, ये तमाम बातें हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर में, राइट. नेक्स्ट वन इज डू वंस बेस्ट. अपनी पूरी कोशिश करना. मेक एन utmost ट्राई, एफर्ट. द नर्स डिड हर बेस्ट टू हेल्प हर पेशेंट.
नर्स ने अपनी मरीज़ा की मदद करने की पूरी कोशिश की। The nurse did her best to help her patient. Next one is to give a chance, मौका देना, to provide someone an opportunity, we can say, right? To give a chance. Everyone should be given a chance to give his opinion, right? Everyone should be given a chance to give his opinion. हर शख्स को मौका देना चाहिए कि अपनी राय का इजहार कर सके. Everyone should be given a chance to give his opinion. हर शख्स को अपनी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए, राइट? ये मतलब है इसका. नेक्स्ट वन इज एन इनर वॉइस. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ज़मीर की आवाज़, अंदर की आवाज़, राइट? हमने चैप्टर में पढ़ा था, उसने क्या कहा? एन इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्पोक आउट, ट्राई वंस फॉर हर, राइट? ये वही फ्रेज यहाँ पे यूज़ की गई है. In her thoughts or feelings, we can say. My inner voice told me to be careful. मेरी ज़मीर की आवाज़ ने मुझे कहा कि मैं मुहतात रहूं, एहतियात करूं. My inner voice told me to be careful. Next word is to make a one's mind. अपना जहन बना लेना, अपना जहन बना लेना, खुद को तैयार कर लेना. हम कह सकते हैं डिसाइड कर लेना कुछ, right? He has made up his mind to give up smoking. उसने अपना जहन बना लिया सिगरेट नोशी छोड़ने के लिए. He has made up his mind to give up smoking. उसने सिगरेट नोशी छोड़ने का या तर्क करने का फैसला कर लिया. Coming toward the next one, frozen to the ground. Okay, ज़मीन में जम गया, मतलब बिल्कुल अच्छा, frozen to the ground का एक्चुअल मतलब ये होता है ज़मीन में जम जाना. लेकिन ये स्टेटमेंट ऐसी है कि हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब बहुत कोई परेशानी की हालत में होता है या आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया. अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर कभी हो जाता है आपके साथ, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि इतना बुरा भी हो जाएगा, तो फिर आप लोग यूँ कहते हैं कि माई फीट फ्रॉस्ट टू द ग्राउंड, मेरे पाँव तो ज़मीन में जम गए, राइट? मतलब मैं परेशान हो गई, बेहिस्सो हरकत खड़ी रही, इस तरह से हम मोशनलेस. देखिए इधर यहाँ पे इसका सिनोनिम लिखा हुआ है, स्टिल सरप्राइज्ड, राइट? द नर्स फीट वर फ्रोजन टू द ग्राउंड. नर्स के पाँव ज़मीन में जम गए. व्हेन शी सा हर पैरालाइज्ड पेशेंट, जब उसने अपनी मफलूज मरीज़ा को देखा, स्टैंडिंग ऑन हर ऑन फीट, खुद के पाँव पर खड़े हुए. The nurse's feet were frozen to the ground when she saw her paralyzed patient standing on her own feet. मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा हो भी सकता है क्या, मेरी पेशेंट इतनी जल्दी विद इन 3 months वो रिकवर कर जाएगी, जिसके बारे में डॉक्टर्स भी डिसअपॉइंट थे और जो बाकी स्टाफ मेंबर्स थे उनमें से भी किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि हीरा कभी चल पाएगी. इवन के एक डॉक्टर ने ये भी कहा कि आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, राइट? इस तरह के कमेंट भी उसे मिले. तो वो कह रही कि जब मैंने उसको देखा तो माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड, मेरे पाँव ज़मीन में जम गए, ये क्या हो गया. कम अराउंड, इर्द गिर्द आ जाना. टू विजिट समवन इन देयर होम. ओके, कम अराउंड टुडे, आ जाओ आज, एंड वी विल स्टडी टुगेदर, हम इकट्ठे पढ़ेंगे. कम अराउंड टुडे एंड वी विल स्टडी टुगेदर, आ जाओ आज और हम सब मिलके पढ़ेंगे. बियर फ्रूट, रंग लाना, मतलब रंग लाना मतलब कामयाब हो जाना. ओके, टू बी सक्सेसफुल. द नर्स एफर्ट्स बोर फ्रूट एंड हर पेशेंट वॉज क्योर्ड. नर्स की कोशिशें रंग लाईं और उसकी मरीज़ा सेहतयाब हो गई. नर्स एफर्ट्स बोर फ्रूट एंड हर पेशेंट वॉज क्योर्ड. ओके, द लास्ट फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. हमने चैप्टर में भी पढ़ा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. जहाँ चाह वहाँ राह. इसका मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि जिस चीज़ की चाहत आप में होती है आप उसको हासिल कर लेते हैं, राइट? अगर आप इसका मीनिंग देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इफ़ यू आर रेजोल्यूट. बिल्कुल कि इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू डू समथिंग, यू कैन, you will actually. The phrase where there is a will there is a way teaches us the lesson of hard work. ये जो जुमला है जहाँ चाह वहाँ राह, ये हमें सख्त मेहनत का दर्स देता है. The phrase where there is a will there is a way teaches us the lesson of hard work.
ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे फ्रेजेस हो गए, हमारे सेंटेंसेस हो गए। ये आई थिंक टोटल 12 हैं मेरे पास जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा, इसको लर्न कीजिएगा। ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये ऐसे फ्रेजेस हैं जो एग्ज़ाम में तो पूछी ही जाती है, बट आपकी रेगुलर जो रूटीन लाइफ है आपकी, उसमें ये जुमले आप लोग यूज़ करते हैं। राइट, लाइक फ्रोज इन टू द ग्राउंड, सेव द वर्ल्ड, कम अराउंड, बियर फ्रूट, दिस एंड दैट। इस तरह के जुमले आपकी रेगुलर लाइफ में यूज़ होते हैं। ठीक है, डेली रूटीन में आप लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं और आपको पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है। ओके ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज सी देखिए। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, फर्स्ट एज वर्ड एंड देन एज नाउन। ओके, ये थोड़ी सी डिफरेंट एक्सरसाइज है। इसमें आपको क्या कहा जा रहा है, आपको कुछ वर्ड्स गिवन है। राइट, जैसे आप देख रहे हैं, केयर है, वॉक है, सरप्राइज है, रिक्वेस्ट है, नीड एंड स्टेट। राइट, अच्छा आपसे कह रहे हैं कि इन वर्ड्स को आप एज अ नाउन यूज़ करें पहले सेंटेंस में। राइट, बल्कि पहले एज अ वर्ब यूज़ करें और फिर एज अ नाउन सेंटेंस में यूज़ करें। मतलब पहले आपने इन वर्ड को, जैसे केयर वर्ड है, आपने इस तरह से यूज़ करने के जुमले में वो एज अ वर्ब आ जाए। राइट, फिर आपने सेंटेंसेस ऐसे ही बनाने हैं, स्ट्रक्चर करने हैं कि अगर जो केयर वर्ड है वो जुमले में एज अ वर्ब यूज़ ना हो बल्कि एज अ नाउन यूज़ किया जाए। सो लेट्स सी कि हम किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। एक ही वर्ड को हम एज अ वर्ब कैसे यूज़ करेंगे और एज अ नाउन कैसे यूज़ करेंगे। आप देखिए अगर यहाँ पे एग्जांपल, फर्स्ट गो स्ट्रेट देन टर्न लेफ्ट। ऑलराइट, अंडरलाइन वर्ड है टर्न। ओके, यहाँ पे जो टर्न का वर्ड है वो एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब आप नीचे सेंटेंस में देखें, इट इज़ माई टर्न नाउ, अब मेरी बारी है। अब यहाँ पे टर्न जो वर्ड है वो एज अ नाउन यूज़ किया गया है। अब देखिए एक ही वर्ड है, हमने उसको डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में यूज़ कर लिया। पहले हमने उसको एज अ वर्ड यूज़ किया, देन हमने उसको एज अ नाउन यूज़ किया। इसी तरह से अगर आप फर्स्ट वर्ड यहाँ पे देखते हैं, केयर, देखभाल करना, हम पढ़ेंगे पहले एज अ वर्ब हम जुमलों में इन वर्ड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। He does not care to spend some time with his family. अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने की कोई परवाह नहीं करता वो। राइट, ही डज़ नॉट केयर टू स्पेंड सम टाइम विथ हिज फैमिली। यहाँ पे जो केयर वर्ड है वो अंडरलाइन कीजिए, ये एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है। डज़ नॉट हेल्पिंग वर्ब के तौर पर है और केयर वर्ड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड इज़ वॉक, चलना। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, दैट शी वुड नेवर वॉक अगेन, कि वो दोबारा कभी नहीं चल पाएगी। देखिए वॉक, चलना, यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है। डॉक्टर सेड दैट शी वुड नेवर वॉक अगेन। थर्ड वर्ड इज सरप्राइज, हैरान रह जाना, बिल्कुल कुछ ऐसा हो जाना जो अनएक्सपेक्टेड था। दैट कुड बी पॉजिटिव, दैट कुड बी नेगेटिव। ओके, स्ट्रेंज थिंग्स सरप्राइज मी, अजीब चीज़ें मुझे हैरान कर देती हैं। स्ट्रेंज थिंग्स सरप्राइज मी, अगेन यहाँ पे सरप्राइज देखिए एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है। रिक्वेस्ट, दरख्वास्त करना, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, उसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उसकी मदद करूँ। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। नेक्स्ट वर्ड इज़ नीड, ज़रूरत होना। ही नीडेड मनी टू बाय बुक्स, किताबें खरीदने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। नीड यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, बिल्कुल क्लियर है। आई थिंक आपको पता वर्ब का एक्चुअल मतलब क्या होता है, फेल, यानी जो काम शो कर रहे हैं। राइट, चलना फिरना, रोना धोना, सोना उठना, ये तमाम फेल हैं, ये तमाम वर्ब्स हैं। राइट, ही नीडेड मनी टू बाय बुक्स, किताबें खरीदने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। स्टेट, बयान करना, लिखना, टू राइट समथिंग। ही क्लियरली स्टेटेड हिज डिज़ायर टू मैरी सलमा, उसने साफ साफ वाज़ह कर दिया अपनी ख्वाहिश सलमा से शादी करने की। He clearly stated his desire to marry Salma. ओके, अब देखिए ये तमाम जो हमने वर्ड पढ़े हैं और सेंटेंसेस पढ़े हैं, यहाँ पे वर्ड्स जो हैं वो एज अ वर्ब यूज़ किए हैं हमने। अब हम इन्हीं वर्ड्स को पढ़ेंगे और इन्हीं के सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे, बट अगेन मैं आपको ये बता रही हूँ कि उन जुमलों में वो ये वर्ड्स जो हैं एज अ नाउन इस्तेमाल किए जाएंगे। सो लेट्स सी। ओके, हेयर फर्स्ट वर्ड यू कैन सी केयर, देखभाल। द हॉस्पिटल प्रोवाइड्स गुड मेडिकल केयर। ओके, ये अस्पताल अच्छी तिबी देखभाल फ्राहम करता है। अब देखिए आप यहाँ पे जो केयर वर्ड है, यहाँ पे एज अ वर्ब नहीं है बल्कि एज अ नाउन यूज़ किया गया है, देखभाल। राइट, दिस हॉस्पिटल प्रोवाइड्स गुड मेडिकल केयर। नेक्स्ट वर्ड इज वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक, आओ सैर करने चलें।
Let's go for a walk. Next word is surprise, हैरानी. The nurse looked at her patient in surprise. नर्स ने अपनी मरीज़ा को हैरानी से देखा. The nurse looked at her patient in surprise. Request, दरख्वास्त. The application form would be sent to you on request. दरख्वास्त का जो फॉर्म है आपको दरख्वास्त करने पर भेजा जाएगा. मतलब if you will make a request to me, then I will send you application form. अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेज दूंगी. The application form would be sent to you on request. Need, ज़रूरत. He is in need of money. उसे पैसों की ज़रूरत है. He is in need of money. The last word is state, हालत. After the accident, हादसे के बाद, I found him in a state of shock. मैंने उसे सदमे की हालत में पाया. After the accident, I found him in a state of shock. हादसे के बाद मैंने उसे सदमे की हालत में पाया. ओके, आई होप आपको क्लियर है ये तमाम चीज़ें. आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए. अच्छा, एक और चीज़, ये आपको पेपर में इस तरह से भी आ सकता है. ऑफ कोर्स सेंटेंसेस तो आएंगे ही आएंगे, बट एक और चीज़ आपको पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में. लाइक आपको अगर कह देते हैं द नर्स लुक्ड एट हर पेशेंट इन सरप्राइज, राइट. यहाँ पे सरप्राइज को अंडरलाइन कर दिया जाए अगर, और आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पे जो वर्ड सरप्राइज है वो वर्ब है या नाउन है. इस सेंटेंस में वर्ड सरप्राइज जो है वो एज अ वर्ब यूज़ किया गया है या एज अ नाउन यूज़ किया गया है. तो यू विल ऑब्वियसली से कि ये एज अ नाउन यूज़ किया गया है, क्योंकि जुमले में एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, सेंटेंस को पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा. द नर्स लुक्ड एट हर पेशेंट, बिकॉज यहाँ पे जो वर्ब है वो लुक्ड है, राइट. जो लुक्ड का वर्ड है वो एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है. जो सरप्राइज है वो एज अ नाउन यूज़ किया गया है. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है ये कंप्लीट एक्सरसाइज. वी आर फाइनली डन विद द इंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर नंबर 9. I hope it's quite clear to all of you, but still if you have any question you can ask me in comment section or you can email me. For next videos, do not forget to subscribe my channel Learning with Anila Khatri and press the bell icon. Thank you.